Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed exercise 7.3. Now today we will start from the exercise 7.4. Let's start. Which of the following are proper fraction? कौन से proper fractions है we have to tell. So students, 5/8 is a proper fraction, 4/5 is a proper fraction, 1/2 is a proper fraction, and 19/21 is a proper fraction. Right students? And rest of these are not improper fraction. ये 3 proper fraction नहीं है. Next, which of the following is improper fraction? Right? हमें बताना है improper fraction. This is the improper fraction and this is the improper fraction and this is the improper fraction. That is 13/10, then 5/2, then 17/6, then 19/18. जो ये मैंने सर्कल किए ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. And this one is the improper fraction. चलिए next, which of the following are the mixed fraction? This one is the mixed fraction, mixed fraction, mixed fraction, and this one is the mixed fraction. Right students? This one is the mixed fraction. चलिए, convert the following mixed fraction into improper fraction. First, second part I will solve for you and third to eighth is your homework. चलिए करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट पार्ट इसका 4 7/10. तो 4 पहले से मल्टीप्लाई होगा. 10 4 is 40, 40 plus 7 that is 47/10. Then second part क्या है? 6 3/8. 8 6 48. 48 plus 3 49 50 51. 51/8. बस आपको क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में. नाउ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. राइट, लेट्स स्टार्ट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. बहुत इजी है. हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट. क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट? दैट इज 11/5. तो डिवाइड करेंगे 5 को 11 से. 5 2 10, रिमेनिंग आया 1. राइट, अब हम इसको किस में लिखेंगे? दैट इज होल and 1/5 or we can write 2 1/5. 2 क्या हो गया? क्वेश्चन 1 हो गया रिमाइंडर और 5 क्या हो गया स्टूडेंट्स? डिविजन. राइट, तो ये आ गया 2 1/5. वन मोर पार्ट 62/9. 9 6 54. 12 minus 4 8, रिमेनिंग 5 0. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6 8/9. यही हो गया हमारा आंसर. हमने इसमें किसको कर दिया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take. Then we will move to the next, that is, so students, and rest of the parts is your homework. That is third to eighth is your homework. चलिए आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट. दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या होता है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. राइट, चलिए लुक एट द
19 and 7.20, the fractions given in the figures represent the same part of a whole. The shaded portion in all the figures are equal. इसमें क्या है 1/2, इसमें 2/4, right? Such fractions are called equivalent fraction. Now, these equivalent fractions are those which have the same value. अभी मैंने यही कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम वैल्यू होती है, राइट? 2/4. तो 2/4 को पहले हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2, देन 3, देन 4. तो इससे जो हमें आंसर ऑब्टेन हुआ है 2/4, 3/6 एंड 4/8, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/2, 3, 4, राइट? तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4. एक बार 2 से किया, 3 से किया एंड 4 से, बट इनके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. Numerator and denominator multiply with the same number, that is known as equivalent fraction, right? Now, when we multiply the numerator and denominator of the fraction by the same number, we get its equivalent, right? तो हम जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे ही अगर डिवाइड हो तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते विद द सेम नंबर 2, 3 and 4. We observe that we divide the numerator and denominator of 2/4, 3/6 and 4/8 with the same number, that is 2, 3 and 4, right students? Now move to the next, that is when we divide the numerator and denominator of a given fraction by the same number, we get its equivalent fraction. जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट? इन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, the product of numerator of the first number and the denominator of the second is equal to the product of the denominator of the first and the numerator of the second. The interesting fact is verified in the given table. This is the equivalent fraction. Numerator of first, denominator, denominator of second. इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 multiplied by 15, 9 multiplied by 5. तो हमारा आंसर क्या आया? इक्वल आया. तो ये वेरीफाई हो गया. 5 multiplied by 32 and 8 multiplied by 20. अगेन हमारा आंसर 160 आया. तो यस हो गया. 6 multiplied by 65, 13 multiplied by 30. Both the answer same. Now what is like fraction and unlike fraction? Students, like fraction का जो denominator होता है वो same होता है. Unlike fraction का जो denominator होता है वो different होता है. You can see this is the like fraction. इसका जो denominator है वो 12 है. And this is the unlike fraction. इसका denominator equal नहीं है. तो हम इसका equal करने के लिए LCM लेते हैं. Next, simplest form of a fraction. A fraction is said to be the simplest form if the HCF of numerator and denominator is 1. For example, we take a fraction 42/70 and try to get an equivalent fraction in which the numerator and denominator have no common factor except 1. We see that 42 and 70 are divisible by 2. तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? 21/35. बट 21 and 35 also have common factor more than 1. जो 21 और 35 है इसका एक और फैक्टर है more than 1, that is 7. 7 3s are 21 and 7 5s are 35. तो ये 2 times किससे हुआ? एक बार 2 से then 7 से. Since 3 and 5 has a no common factor except 1, we get the fraction 3/5. तो ये किस फॉर्म में हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया. Next, to find the equivalent fraction in the simplest form is first to find the HCF of the numerator and denominator of the fraction. Then divide both of them by the HCF. Let us consider a fraction 48/36. The HCF of 48 and 36 is
12. Therefore हमने इसको 12 से किया तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया 4/3. नेक्स्ट दैट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. कंपेयर करना विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेस. 19/23 10/23. तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर दोनों की क्या इक्वल है तो विच वन इज ग्रेटर 19. 8/5 6/5. विच वन इज द ग्रेटर 8/5. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं उसका फर्स्ट हम उसका डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम. फिर हम उसको इक्वल करने के बाद जो आंसर्स आते हैं उसको हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नाउ solved examples is your homework. Now move to the next that is the exercise. अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज दैट इज 7.5. राइट. चलिए. राइट द फ्रैक्शंस एंड चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट. तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स हाउ मेनी पार्ट्स 3. कलर कितने हैं 1. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/3. नेक्स्ट 3 and 3 6. हाउ मेनी कलर्ड पार्ट दैट इज 2. और ये राइट हाउ मेनी पार्ट्स दैट इज 3 6 9 और कलर्ड दैट इज 3. ओके. अब हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना कि ये इक्वल है या नहीं है. 2 1s are 2 3 2s are 6 3 1s are 3 3 3s are 9. तो ये सब 1/3 की फॉर्म में तो ये हो जाएगा यस. यस दे आर इक्वल. यहाँ पे लिखना यस दे आर इक्वल. राइट. सबका आंसर 1/3 आया. इसमें 1/2 1 2 3 4 5 6. How many shaded part 1 2 and 3. Right. In this how many parts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. How many shaded part. Shaded part कितने हैं इसमें स्टूडेंट्स 1. दैट इज 1 2 3 4 5 6. तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं. 3 1s are 3 3 2s are 6 6 1s are 6 6 2s are 12. तो ये सारी 1/2 के फॉर्म में आए. यस दे आर इक्वल. क्या हो जाएगा यस दे आर इक्वल. दे ऑल आर इक्वल. राइट स्टूडेंट्स. तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पार्ट पे. राइट स्टूडेंट्स हमें यही बताना था दैट इज दे आर इक्वल और नॉट. हम एक ये भी तरीके से कर सकते हैं और इसका हमें बस सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बताना था. राइट. और नहीं तो हम इसको चेक करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं. यू कैन सी हेयर दैट इज एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1. जैसे हमारा आंसर आया था 1/3. राइट. देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. देन इसका आया था 2/6. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 3 2s are 6 6 3s are 18. देन इसका आंसर आया था 3/9. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. 4 3s are 12 9 4s are 36. अब ये 2/6 then 6/18 and then 12/36. राइट. तो हमने पहले 1/3 से किया देन 2/6 से किया. राइट. तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं. वेट अ मिनट स्टूडेंट्स. दैट्स द करेक्ट वन जो हमने प्रीवियस वन किया था. राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ थर्ड पार्ट इज योर homework. Now move to the next. Write the fractions and match the fractions in column with the equivalent fraction. आपको यहाँ पे fractions given है. First हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 then 3/4. right. तो अब आपको मैच करना है कि हाफ का मैच कौन सा है इसमें. You have to match. right. Then you have to match with the second column. This is the column A and this is the column B. So this one is your homework. Now move to the next.
that is identify the fraction in each. Are these fraction equivalent? आपको ये देखना है कि ये equivalent है या नहीं है. तो first one is that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we will write here 12. Shaded part कितने हैं? That is 4 and 4 8, right? अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे. दैट इज 4 2s are 8 and 6 2s are 12, 2 2s are 4 and 3 2s are 6. So you get 2 upon 3 में, and rest of the parts is your homework. चलिए next part, that is write 5 equivalent fraction. So first part I will solve for you, second to fourth is your homework. 5/9 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं. फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 5/9. तो 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 5. कितने टाइम्स हुआ? 1 2 3 4. देन 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 6. तो ये हो जाएगा 5 2s are 10, 9 2s are 18, 5 3s are 15, 9 3s are 27, 5 4s are 20, 9 4s are 36, 5 5s are 25, 9 5s are 45, and then 5 6s are 30, 9 6s are 54. तो आंसर है 10/18, 15/27, then 20/36, then 25/45, and then 30/54. 1 2 3 4 5. तो ये क्या हो गए? हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए. राइट स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इज योर होमवर्क. चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रिप्लेस दिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर. तो फर्स्ट पार्ट आई विल